हाउ टू आइडेंटिफाई डेली बायस। ओके, डेली बायस को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो टुडेज टॉपिक विल बी दैट. This is not going to be the only topic. We're going to talk about other things also, but this is going to be one of the topics. For instance, let's say we always going to start with a higher time frame. It can be daily, monthly, weekly, whatever. So on monthly time frame, obviously since we are at the all time high, gold की बात कर रहा हूँ, सोने की बात कर रहा हूँ, हम एकदम टॉप पे हैं. So we are unable to, we do not have much data here, so we're gonna do come down to weekly time frame. On the weekly time frame we can see what the price is telling you. See that what was the price is telling you. One second, someone joining. One second. I am unable to accept it. Okay, so one second. Arey yaar, accept. Sorry, apologies. So how to identify a daily bias, really super important, because अगले दिन की कैंडल बुलिश बनेगी बेरिश बनेगी उस पर सोल डिपेंड करता है. ठीक है, तो अलाइनिंग ऑल दी टाइम फ्रेम्स वीकली डेली 4 आवर 1 आवर 1 आवर इज दी. यहाँ तक आप एनालिसिस करोगे, 5 और 15 आपका एग्जीक्यूशन के लिए है. अवॉइड 1 मिनट एज मच एज यू कैन. On the weekly time frame, what do we understand from this price action? The price is getting rejected from the top, price is getting rejected, price is getting rejected from the top, price is facing a rejection from the top. Okay, as we can see. On the daily time frame, what do we understand? On the daily time frame, what are we able to understand? We are able to understand that price is still it's moving in a bearish order flow way. What do we understand by the term bearish order flow? Let's open one of our one second. No need to open that. Now let's just make it here. So whenever price is going up, I tell you guys that price is moving in this way, right? So this is your external part of the LIQ. This is your internal part of it. Whenever price take out the external part, नो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि प्राइस सीधा ही ऊपर चलता रहेगा. ऐसा नहीं होता. प्राइस इज बाउंड टू कम इनसाइड, देन प्राइस विल फॉलो द 1 2 3 पैटर्न वी हैव. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट? अ सिंपल पैटर्न. आवर जॉब इज टू मैप द ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लो. वट एवर प्राइस इज इंटरेक्टिंग विद, प्राइस किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, हम उसको मैप आउट करेंगे. अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप से कनेक्ट होकर गिर रहा है तो हम फेयर वैल्यू गैप को कनेक्ट करेंगे. ऑर्डर ब्लॉक से तो ऑर्डर ब्लॉक को. तो वी आर जस्ट गोइंग टू मैप द ओबीज. नाउ कमिंग बैक हियर, व्हाट डू वी सी? द प्राइस इज on the daily time frame, price is actually moving in a very connected nature. ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मिटिगेशन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मिटिगेशन हुआ, एंड सो फोर्थ. ठीक है, so there is a possibility that the next daily candle can be bearish, because we are in a bearish sentiment, we are in a bearish market, we are in a premium side of the market. ठीक है, तो हम यहाँ पे bearish की और ज्यादा रुख रखेंगे. Now on 4 hour, what do we see? We can see that this buy to sell order block got mitigated. This buy to sell order block got mitigated, and this order block, which was unmitigated, got mitigated again. This order block also got mitigated here. So we can see price is moving in a very connected nature. So whenever price happen to coming in this area, what do you see now? Now, if any of you will say, I want to long here, I think price is moving in this direction. Price is, this is the break a block. Price connect कर रहा है. This is the BRK. Price is connect. Yes, you are right. You can be right. But currently, HTF price action is bearish.
Higher time frame price action is what? Bearish. Always follow higher time frame price action. So in our point of interest, what price is actually doing? This was the internal high. इंटरनल हाई मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने इंटरनल हाई ब्रेक करके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में डिलीवरी दी. आफ्टर दैट व्हाट आर यू एबल टू सी? देर इजंट मेनी imbalances here. Price is quite balanced. There is no gap, there is no displacement, so nothing to do. Price took the high. After sweeping the 4-hour high, price delivered to the downside, creating what? A buy to sell scenario, a perfect buy to sell scenario. And this is in alignment. ये हमारे alignment के साथ मैच करता है, जो हमारी बेरिश ऑर्डर फ्लो थी उससे मैच करता है. नाउ you are expecting price to go bearish, price is showing you that price wants to go down, then you simply go down and find your entries. Now on 1 hour time frame, what do you see? This internal low got taken. Now what is the culprit candle? This indecision candle is the culprit candle, the order block. Indecision candle को order block लेते हैं, ठीक है. Now what do you see? Another, ठीक है. I told you one thing, if price wants to go up, it will go up in this way. 1 2 3. If price wants to go down, it will go down in this way also. 1 2 3. 1 2 3. Expansion, normal, origin of the price, ठीक है. ठीक है, पुल बैक, उसके बाद एक्सपेंशन, ठीक है. नॉर्मल, स्टार्टिंग एक्सपेंशन हो गया, पुल बैक हो गया, देन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, सेम थिंग, ठीक है. नाउ you have the opportunity of entering either at this price because there is order block right there, you can sell, or here you can sell. You will be targeting this area. Why are you going to target this area? It's very simple. If price is forming a structure here and you know price is bearish, आपको पता है price bearish है, ठीक है. Price is bearish, price is like this. So अगर उसको सच में bearish है price, तो price has to take this, otherwise you will be wrong. या तो आपका आइडिया रॉन्ग है, अगर आपको पता है कि आपका आइडिया सही है, एंड अगर मेरा आइडिया तभी सक्सीड होगा जब ये ब्रेक होगा, ठीक है. तो यू कैन सेल इन दिस एरिया टारगेटिंग दिस 1 2 3, ठीक है. अ सिंपल. So we came from weekly, daily, 4 hour. Now we are going down to 15. What do you see on that 15? What do you see? We had that order block. Price went up in a very tight range manner. Whenever price do this forms what? A liquidity on both side. दोनों साइड लिक्विडिटी ना, क्योंकि एक रेंज में बाइंग हो रही है, नीचे से भी बाइंग दिखा रहा है, ऊपर से भी बाइंग दिखा रहा है. नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो जैसे ही वो रिवर्स करेगा. अब जैसे ही रिवर्स करेगा वैसे ही इस पोजीशन में आप कहीं भी एंटर कर सकते हो. आइदर यू कैन एंटर हेयर, ठीक है, यू कैन एंटर हेयर. You don't want to enter here, you can enter here on the order block and target the same liquidity down there. It all comes down to the idea of daily bias कि daily bias क्या है, ठीक है. A very beautiful concept, not more than concept, it's an understanding. और पिछले दिन की कैंडल बेरिश बनी है तो आज के दिन की कैंडल शायद से कंटिन्यू करेगी, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हो. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग दिख रही है. यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में पिछले दिन की कैंडल ने पिछला जो हाई था उस हाई को ब्रेक किया, नीचे क्लोज किया. व्हाट इज दैट टेलिंग यू? अगर प्राइस ऐसे है, प्राइस ब्रेक करके नीचे क्लोज करे, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेक्शन इन दिस एरिया एंड प्राइस इज पॉसिबिलिटी गोइंग डाउन. ट्रेडिंग तो 50-50 है. दिस इज जस्ट योर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, राइट? So that's why daily bias is super important. Now
let's do weekly. एक वीकली करते हैं. Now let's pick any area of interest. ठीक है, I'm picking this area. ठीक है, we have a big sell to buy candle. ठीक है, अब बड़ा सेल टू बाय कैंडल है, ये एक हफ्ते का टाइम फ्रेम है. ठीक है, आई एम गोइंग टू try to explain you guys on the weekly how we can actually perform this also. ठीक है, that's a weekly order block. ओके, तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है. ठीक है, अब मैं डेली पे अगर सेम चीज़ को देखूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि डेली मुझे पॉसिबिलिटी, मतलब देर विल बी पॉसिबिलिटीज ऑफ गोइंग लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया एज पर वीकली टाइम फ्रेम. ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन. तो यहाँ पे मेरा आधा काम खत्म हो गया है, मेरी बायस खत्म हो गई है कि मेरे को अब ये नहीं सोचना यार व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. माय जॉब इज बाय करना है. नाउ इज जस्ट फाइंडिंग दैट मॉडल दैट कैन सपोर्ट माय बाय. ठीक है, बाय प्रोग्राम. ओके, नाउ market is going down, cool, no issues. That was one of the cue, change in character. ठीक है, now simply within that range, within that range price came for the mitigation and went up within that range. So it is providing us with this range, चाहे आप वीकली लो मंथली लो, तो एक नेक्स्ट डे की कैंडल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं by just understanding one candle on higher time frame. ठीक है, now let's do Nasdaq. Nasdaq में अब एक छोटे टाइम फ्रेम से हम कैसे उस इतना इंट्रिकेट डिटेल्स को कैसे मैनेज करेंगे. ओके, पहले हमें एक बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी है. नाउ by looking at this price action, what I'm able to conclude, what I'm able to understand, पैसा आप डिलीट करेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन नथिंग. यहाँ पे if we simply start with here. ठीक है, now you see लास्ट लो प्राइस ने लिक्विडेट किया, लास्ट लो प्राइस ने लिक्विडेट किया and it went up. So that means liquidating the last low, then it went up. So obviously that is the order block, that is the sell to buy. So I'm gonna keep that sell to buy. ठीक है, I'm keeping that sell to buy. ठीक है, that is the breakout structure. I'm keeping that sell to buy कि यहाँ से there is a possibility of going up. Now coming back to 4 hour, now here we can simply see a single candle BRK वाला, the single leg candle. इसको यहाँ पर भी लॉन्ग किया जा सकता था. दैट सेम कैंडल इज सस्टेनिंग. ठीक है, अब लेट्स से वी आर इन दिस प्राइस एक्शन, वी आर इन दिस प्राइस एक्शन राइट है. ठीक है, 1130 350 परफेक्ट. लेट्स से वी आर इन दिस क्लस्टर. अब इस क्लस्टर में 30 730 1130, हाँ cool. Let's say we are in this cluster on 4 hour or on 1 hour we came down, we can see there is another BRK kind of a situation on 1 hour, which is also telling us that price can be bullish. यहाँ से हम सारा bullish है, पीछे से bullish आ रहे हैं. We are just connecting dots. Okay, we're just connecting dots. Here on top of it, since that is a 1 hour SNR also,
1 hour SNR, we can clearly see if we, even if you do not know much of it, even if you do not know much, still I believe with simple knowledge of SNR this can be traded. सिंपल एसएनआर भी आता है तो भी आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ब्रेकअप ब्लॉक भी है। ब्रेकअप ब्लॉक यहाँ पे क्यों है आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंगल लेग है, मार्केट ने इस तरीके की सिंगल लेग बनाई, फटाक से नीचे गिरा। ऐसे केसेस में दैट ऑलवेज बी ऑर्डर ब्लॉक जो कि वायलेट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको बीआर की एनालॉजी से भी ले सकते हो, एसएनआर की एनालॉजी से भी। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस हैपनिंग हियर, so a lot of potential support. So price came down, taken support. Now you can see here, you can see simply how price went up from this area, right? Now थोड़ा सा और intricate details में जाते हैं, ठीक है? We have this SNR, we have this BRK also in this level. Now if you pay attention, market में 10:30 कितने बजे होता है? 10:30 ये है, that is your एशिया लो। ये मैंने मैसेज भी किया था, आई होप आपने ध्यान दिया हो। एशिया लो, ठीक है। 1:30 क्या होता है आपका? लंदन ओपन। तो ये दो टाइम फ्रेम्स हैं। अब मैं इन दोनों टाइम फ्रेम्स पे सिंपली एक लाइन क्रिएट करूंगा, वट एवर बी दी एशिया लो। अब मैं सब हटा देता हूँ। व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिख रहा है? कैन एनीवन वांट, डू यू एनीवन वांट पार्टिसिपेट? व्हाट डू यू सी? प्लीज पे अटेंशन कि मार्केट में ना एक कहावत है, विक्स डू द डैमेज, बॉडी टेल्स द स्टोरी। विक्स डैमेज करती है, विक्स असली प्राइसिंग नहीं होती है। मतलब ऑब्वियसली प्राइस वहां तक गया लेकिन क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग मेन होता है। बॉडी डू द विक्स डू द डैमेज, बॉडी टेल्स द स्टोरी। स्टोरी क्या है कि मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी बट मार्केट इज अनेबल टू गो डाउन। रिजेक्शन, बॉडी क्लोजिंग किधर है? एशिया रेंज के अंदर। मार्केट की क्लोजिंग किधर है? एशिया रेंज के अंदर। ये चीज इनफ है आपको। आपकी डेली बाइस क्या थी? डेली बाइस क्या थी? डेली पे क्या था? लॉन्ग। क्या था? डेली पे लॉन्ग। 4 आवर पे क्या था? बी आर के, यहाँ से बी आर के से क्या था? लॉन्ग। 1 आवर पे क्या है? 1 आवर पे क्या है? लॉन्ग है। एवरीथिंग इज टेलिंग यू द मार्केट इज लॉन्ग। तो ये आपका डेली बाइस क्या है? लॉन्ग। नाउ योर जस्ट नीड टू प्लेस योर एनालिसिस, place your model. You can take entry here BRK के हिसाब से, on the basis of BRK. You can take your entry here on the basis of BRK. ठीक है, ठीक है। Now that is going to be your whole day trade and it's a very good trade। मतलब इस ट्रेड में आपको काफी अच्छा मुनाफा हो जाता, ठीक है। यहाँ से लेके या यहाँ से लेके प्राइस जस्ट वेंट क्रेजी। नाउ ठीक है, दैट्स डन। अब यहाँ से ना सब हटाएंगे। अब ये हमारा नया दिन है, ये 4 तारीख है, 5 तारीख है, 6 तारीख है, तीनों तीनों अलग दिन है। नाउ ऑन एज पर प्राइस एक्शन, यहाँ से हम नीचे से देखें ऑन 1 आवर, प्राइस लिक्विडेटेड द ओल्ड लो। ऑर्डर ब्लॉक थी, बी आर के बन गई, बी आर के थी, यहाँ पे बी आर के थी, वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक थी, बी आर के बन गई। यहाँ पे भी हमारी ऑर्डर ब्लॉक थी, वो इधर बी आर के बन गई। तो बेसिकली हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक किधर है? अनमिटिगेटेड मतलब जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, विच इज गोइंग टू बी दिस वन फ्रॉम हेयर टू हेयर। So we could have taken the continuation here also. So in any time I was not looking for sells. Why? Because price is moving in a very connected nature. If daily सारे के सारे, हाँ जी भावेश, if every other time frame is bullish, then in those scenarios we won't be looking for any counter trades. Counter trades नहीं करना। अब डेली बुलिश है, 4 आवर बुलिश है, 1 आवर बुलिश है, योर जॉब इज टू कनेक्ट दी ऑर्डर ब्लॉक्स, योर जॉब इज टू कनेक्ट दी ऑर्डर ब्लॉक्स, मेक दी एसएनआर, ये सारी चीज़ें बनाओ। यहाँ पे एक सिंपल, एक मिनट रुकिए भावेश जी, यहाँ पे लेट मी फिनिश। यहाँ पे हम एकदम शुरू से का देखें तो यहाँ पे देखिए कि प्राइस कर क्या रहा है। प्राइस ने पिछले लो को स्वीप करा,
और ऊपर क्लोजिंग करी, इसका मतलब क्या, प्राइस और नीचे नहीं जाना चाहता है। 4 आवर पे क्या है, 4 आवर पे यू कैन सी एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुई थी, वो बी आर के बन रहा है। तो बी आर के अभी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुई थी यहाँ पे, जो बी आर के की तरह काम कर रहे। तो लॉन्ग्स आर इन ट्रेंड, लॉन्ग्स अभी ट्रेंड में है, ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग ऑन 1 आवर, इट्स सिमिलर, यू कैन सी एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ फॉर्म हुई थी, जो कि यहाँ पे बी आर की तरह काम आ रही है, बी आर के की तरह काम आ रही है। वी हैव रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो वर्किंग एज अ बी आर के। बी आर के से पहले भी विच वन, ठीक है, we have resistance यहाँ पे, now that resistance is working as support. Now since price has taken the one you showed, this one, this one, which one, ये तो बी आर के नहीं है, ये ना, दिस इज अनमिटिगेटेड, ये मिटिगेशन नहीं हुआ है इसका, यहाँ हुआ है इसका मिटिगेशन ना। वी कैन टेक पोजिशंस यहाँ पे, correct? See, no, you have to mark this sell to buy in this case. In this case मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक इसलिए मार्क किया बिकॉज दिस इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ बी आर के। बी आर के की क्यों है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस ने इस तरीके से मोमेंटम क्रिएट किया, फिर इट डम डाउन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इस केस में। इट्स जस्ट डिफरेंट केस, मेक सेंस। यहाँ पे बी आर के सिचुएशन है, दैट्स वाई, ठीक है। तो that resistance now working as support, from that support we can see that price was moving up. Since price was moving up, price left this unmitigated order block, and since price we are looking for buys, this is going to be your best case scenario. So this would be my idea of doing the daily bias thing. So we can do daily bias thing, and we probably should do on every other asset. अगर मैं एकदम फ्रॉम स्क्रैच इफ आई टीच यू, यस भवेश, सर सॉरी टू इंटरप्ट, वो जो आप अभी बता रहे हो ना, बी आर के पहले जो मूवमेंट हुई है, मैं उसके बारे में पूछ रहा था। यस, नहीं, उसके पहले, या द लो ऑफ दैट लाइन, यस, yes, this year, so that is also not mitigated na? no, there is no imbalance, no, we will not take it. Is there, do we have any imbalance in this case? We do not, right? Right. We have imbalance here, that's why we are taking that as a BRK. We have imbalance Okay. here, that's why we are taking that as an order block. We are taking this as a SNR plus PRK. So yes, Understood. hi. Alright, एकदम स्क्रैच से बायस बनाओगे, दिस इज अ परफेक्ट वे टू मेक अ बायस, BRK plus FEG, perfect. Yes, Karan, you are learning very fast. ठीक है, एकदम स्क्रैच से अगर आप एनालिसिस करोगे, आई वुड सजेस्ट पहले डॉलर देखो, फिर एसेट देखो, ठीक है। हम JPY पे करेंगे, तो JPY में, तो JPY बास्केट क्या होता है, मार्केट ना, 4x मार्केट, मैं 4x मार्केट की बात कर रहा हूँ, कोरिलेशन में चलती है। तो एक होती है हमारी करेंसीज होती है, दो करेंसीज को मिलके एक पेयर बनता है, ये करेंसी है, ये करेंसी है। फॉर एग्जांपल, एक होता है प्राइमरी करेंसी, एक होता है हमारा वीकर करेंसी, नॉट प्राइमरी करेंसी जो मेन करेंसी है, और उसके अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ USD वर्सेस INR, इसका मतलब है USD के खिलाफ INR की क्या कीमत है। एक USD इक्वल्स टू 85 रुपये है अभी, 85 रुपीज। तो इफ वी एनालाइज USD कि USD गिरने वाला है, अगर USD गिरेगा तो INR ऊपर आएगा, तो दिस इज कोरिलेशन, ठीक है। ये इन दोनों का इनवर्स कोरिलेशन है, तो मतलब क्योंकि ये दोनों अगेंस्ट वाले पेयर हैं, तो इनका कोरिलेशन है अलग। और मैं बात करता हूँ XXX JPY,
JPY मतलब जापानी येन, जापानीज येन ना, ये जापानीज येन का फ्यूचर है। अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं एनालिसिस करता हूँ कि जापानीज येन नीचे जाएगा तो जितने भी एक्स 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 JPY हैं वो कहाँ जाएंगे, वो ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सिंपल कोरिलेशन है। ठीक है, अब इसको मैं शुरुआत करूंगा एकदम हायर टाइम फ्रेम से, देन आई विल ड्रॉप डाउन। हायर टाइम फ्रेम पे व्हाट डू वी सी, गाइस गाइस गाइस, व्हाट डू वी सी? We can simply see this. We can simply see there is an buy to sell order block. ठीक है, where the market is currently sitting. On 4-hour time frame, what do you see? There is a 4-hour bearish order block. Now, if I tile both the if I tile both the asset against one each other, what it will be easier to understand. हमें उल्टे हाथ पे मेरा जापानीज येन है और सीधे हाथ पे मेरा यूरो JPY है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो दैट्स व्हाई एनालाइजिंग एसेट्स प्रॉपर्ली इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, एंड देयर इज अ मेथड, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस टू डूइंग these things which I'll be explaining now. Now here I can see GB पे JPY करते हैं, दैट इज मच क्लीन, डजंट रियली मैटर, कुछ भी कर सकते हो। अब मेरे उल्टे हाथ पे आप देख सकते हो जापानीज येन नीचे जा रहा है, 4 घंटे की टाइम फ्रेम है, 4 घंटे की टाइम फ्रेम है, 4 घंटे की ऑर्डर ब्लॉक बनी बेरिश, 4 घंटे की ऑर्डर ब्लॉक बनी कहाँ पे बनी, बुलिश। तो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कि जापानीज येन, आपको लगा कि भाई जापानीज येन नीचे जाएगा, ठीक है, और आपके चार्ट के हिसाब से नीचे जाना चाहिए जापानीज येन, यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, एंड बोथ आर वर्किंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फाइन। अब यहाँ पे मैं सिंपली इन्हें अनटाइल करूँ, अनटाइल करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि भाई जापानीज येन गोइंग टू गो डाउन, और मेरे मेरे एसेट के ऊपर जाने के चांस हैं। मेरे 4 घंटे की टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक बन चुकी है। तो मैं एनालिसिस कैसे जाऊंगा, किस किस प्रकार से मेरा माइंडसेट होना चाहिए पूरे दिन के लिए। जापानीज येन नीचे जाएगा, दैट इज माय आइडिया। मैं आई गो बैक टू दी 4 आवर टाइम फ्रेम और एनी हायर टाइम फ्रेम। अब मुझे पता है कि भाई जापानीज येन नीचे है। अब मेरे को यहाँ से एनालिसिस करता हूँ मैं, तो मैं देख सकता हूँ कि मार्केट वॉज फॉलिंग, मार्केट ने चेंज इन करेक्टर करा, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक प्रिंट करी 4 घंटे की। मैंने उस ऑर्डर ब्लॉक को मैप किया, वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। देन मैंने एक और मैप करी, वो अनमिटिगेटेड थी, जो कि मिटिगेट हो गई आगे जाके। ठीक है, फिर मैंने एक और मैप करी, क्योंकि ये तो मिटिगेट हो गई है, अब अनमिटिगेटेड कौन सी है, विच इज दिस वन। By using simple logic, we can possibly trade the best fucking setups around, best setups, big setups. And I'm talking numbers here, I'm talking numbers. These are numbers. These are 2700 points. Understanding the dynamics of the market. ठीक है, जापानीज येन समझ में आया। अब मुझे पता है मेरा डेली बायस क्या है। सॉरी, मेरा डेली बायस पता है, 4 घंटे पे मैंने ओबी बना दी। आई गो डाउन टू 1 आवर। Now on 1 hour, what I'm able to see, we want patience in the market, okay? 4 घंटे की मेरी ऑर्डर ब्लॉक बनी हुई है। I want patience here. I don't want to rush. No rushy. Patience. Order block to order block, FVG to FVG, perfect analysis. Order block to order block, ठीक है, FVG से ऑर्डर ब्लॉक कनेक्ट करा, तो ऑर्डर ब्लॉक कौन पावर में है, करंटली ये है, क्योंकि आइदर एफईजी से करेगा या तो ऑर्डर ब्लॉक से करेगा, जिससे भी कर रहा है दैट इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, नाउ ऑन टॉप ऑफ इट, अंडरस्टैंडिंग दिस प्राइस एक्शन, नाउ डिलीट इट। यू आर एट 1 आवर टाइम फ्रेम, आपको पता चल गया कि एक वैलिड हाई आपका ये है, जो वैलिड हाई है, वैलिड। नाउ प्राइस तो गिर रहा था, प्राइस वाज फॉलिंग, आपका आइडिया उल्टे हाथ पे है, जो कि आपको पता है आपको करना क्या है। आप बाजार में आए हो अगले दिन, आपने ऑर्डर ब्लॉक मैप कर ली 4 घंटे पे। नाउ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, you should not be having any questions, either you're gonna fail, या तो आपका क्या हद से क्या होगा, what will happen, your stop loss get hit, that's not the end of the world, but the feeling of following your process, the feeling of following your models,
फॉलोइंग द रूल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे बने ना बने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे ठीक तरीके से बने ताकि वो बनते रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। हैविंग वेरी गुड हैबिट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज माई, ठीक है, मेरा 1 घंटे, मुझे पता है मुझे लॉन्ग करना है, मेरा उल्टे हाथ पे मेरा एनालिसिस है, मुझे लॉन्ग करना है, मैं कैसे करूँगा। अगले दिन की शुरुआत होती है, ट्यूसडे की शुरुआत होती है, सुबह के 6:30 बजते हैं, 9:30 बजते हैं, ठीक है, नीचे मैं टाइम दिखा रहा हूँ जान के। प्राइस ने नीचे लेग मारी, लेग मार के प्राइस ने, हमेशा प्राइस ना चेस कर रहा है, प्राइस हमेशा किसको चेस करता है, प्राइस हमेशा इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए चेस करता है, लिक्विडिटी को चेस करता है, दो चीज़ों को चेस करता है खाली। यहाँ पे प्राइस ने किसको चेस किया, प्राइस ने इक्वल लोस को चेस करा, वन ऑफ माई फेवरेट मॉडल्स, इक्वल लोस को चेस करा। अभी भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, सेम होना चाहिए, कुछ चेंज नहीं हुआ। योर मॉडल गोइंग टू वर्क, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे वहां तक पहुंचे, एंट्री तक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के करते समय कौन सी कैंडल थी जिसके द्वारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वी हैव दिस इनडिसीजन कैंडल, मैप दैट आउट, ठीक है। यू नीड टू हैव अ काम माइंड टू ऑपरेट, जस्ट एग्जीक्यूट करना है, कुछ नहीं, चिल है एकदम। नेक्स्ट थर्सडे at 2:30 at the time of London session, you can enter anywhere here. Now you can come down to 15, that's now it's the go time. Now you know you have everything ready, you're just waiting for what, a displacement, a displacement just telling you now to fire that sniper shot. That liquidity got taken on 15 minutes is a big time frame. What do you see? I see order block, you can see that displacement to the downside, that is going to be a breaker block, mark that out. Whenever price close above the BRK के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो BRK के ऊपर क्लोजिंग थी, नो क्लोजिंग, नो क्लोजिंग, जैसे ही क्लोजिंग आई दैट BRK स्टार्टेड वर्किंग, closing above BRK is important, that is going to be the place where you going to enter, ठीक है। now after entering here we are just going to use टारगेटिंग के लिए हम OTE का इस्तेमाल करेंगे, SMD का स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से 2.5 के आसपास कोई भी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, दैट इज योर टारगेट, दैट इज योर टारगेट। स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे अचीव हुआ। अब यहाँ पे अब आपका व्यू क्या था दोस्तों, योर व्यू वाज बुलिश और बेरिश, बुलिश था ना, योर व्यू वाज बुलिश ना। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, market was going up, then suddenly there was a big displacement to the downside, so that is your order block, right? But that order block did not sustain. If order block do not sustain, what do they become, they become BRK. So another entry, that was your another entry. And as long the structure is not breaking, you can simply go buy, 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 again buy, again buy, again buy. So it's like that. So this was your BRK से यहाँ पे हमारा buying बना. So this cluster is your order block. You can map this way. Now this order block is getting connected to that order block. ठीक है. Now what do you see? यहाँ पे हमारा order block है. That is in effect में है. ठीक है. Order block से order block टकराते हैं और उसके बाद ब्रेक हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं S&D flip. Now that is your S&D flip. If you do that, that would have been your entry. Now समय के अनुसार this is your Asia range, now this is your power of 3 also, a lot going on, right? And all of this is happening just because of one analysis. So this is going to be your analysis 1, analysis of the instrument of the whatever instrument you are going to trade. ठीक है, उसका पहला आपका एनालिसिस होगा आपका बास्केट का। बास्केट के बाद यू नीड टू एनालाइज योर एसेट, इंस्ट्रूमेंट जो भी आप ट्रेड कर रहे हो। Oh, this was amazing analysis on JPY, beautiful. अब डेली बायस हम इस प्रकार से मैप आउट करना है। अब आपको पता था पिछला दिन मेरा बुलिश था, तो आज का दिन भी बुलिश हो सकता है, ऐसी संभावना है। उस संभावना के हिसाब से अब आपको क्या करना है ना,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेली डेली कैंडल क्या थी, डेली कैंडल तो बुलिश बनी ना, कितनी बड़ी अच्छी खासी बिग बॉडी, फुल हेल्दी कैंडल है, बिग बॉडी की कैंडल है, अगली कैंडल बुलिश बन सकती है, ऐसा संकेत है। उस संकेत के हिसाब से आप लॉन्ग्स ढूंढो, लॉन्ग्स बनाओ, अपनी ऑर्डर ब्लॉक्स कनेक्ट करो प्रॉपरली, यू विल फाइंड इट। जेपीवाई सेम रहता है, जेपीवाई तुम्हारे बास्केट है, अभी ये सेम चीज़ मैं यूएसडी जेपीवाई में कर सकते हो आप, बिकॉज आपकी बास्केट की एनालिसिस खत्म हो गई ना, मेन एनालिसिस आपकी बास्केट की है। अब हम सेम चीज़ इसको यहाँ पे भी करेंगे तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। अब सबको डिलीट करते हैं, हमारा इसके अंदर टारगेट हिट हो चुका है, वी वर सेलिंग यूएसडी जेपीवाई फ्रॉम द टॉप टू द डाउन, एंड आई बैट, इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये भी आपको समझ में आएगा कि मैं इधर क्यों सेल करा मैंने। डिफिकल्ट नहीं है नॉट डिफिकल्ट, जस्ट यू नीड टू बी अटेंटिव। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स फोकस, व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। व्हाट डू यू सी, फर्स्ट जॉब इज टू मार्क द ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक 1, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक 2, ठीक है, एंड सो ऑन, दैट वाज द लास्ट वन। लेट्स जस्ट मार्क स्मॉल ताकि वो ज़्यादा जगह ना घेरे, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई सी समथिंग, I see a change in character. If I see that change in character, I see indecision candle. Cool. 4 hour. What do you see? There is nothing to explain. It's I think it's pretty easy trade. Now on 4 hour, what do you see? A change in character. You see that now? A proper sell to buy. And after that, it's happening. Yeah, from here you can enter here, take positions here or take positions here. Both are valid activities you can do. Alright guys, this was about daily bias. I hope you understood it. किसी को कोई doubt इसके अंदर? Because daily bias is super important. How we have to frame our ideas. Because I don't want to go into the markets unprepared. I'm not prepared. I don't know what to do. I'm just trading anything I'm seeing. I don't want that habit. That's not a good habit. ठीक है, तो इस तरीके से आप डेली बायस को भी अचीव कर सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स, एंड यस, सुपर इम्पॉर्टेंट।